طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. RN نیوز میں آپ کا خیر مقدم. طارق صاحب، یہ الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت کنفیوژن ہو رہا ہے تاجر برادری میں بھی، عوام میں بھی، کیونکہ تاجر برادری کے ساتھ ساتھ آپ عوام سے بھی منسلک ہیں اور پچھلے 9 سال سے آپ ایکٹیو ہے اس میں بھاپار منڈل میں، تو لوگوں میں جو الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن ہو رہا ہے، کسی کے فارم ریجیکٹ ہو گئے، کچھ ہو گئے، اس بارے میں آپ بتائیے کچھ. آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں موقع دیا لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا. دیکھیے، ہماری ٹرم جو ایز جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ دسمبر 2021 میں ختم ہوئی. اس وقت ایز پر کانسٹیٹیوشن آف بھاپار منڈل بارہمولہ ہمیں لاسٹ مجلس عاملہ کی جو ہم میٹنگ بلاتے ہیں، اس میں ایک تو بھاپار منڈل بارہمولہ کے جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ پورے اپنے ٹینور کی کارکردگی اپنی ایگزیکٹو باڈی کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بائی بیلٹ ہم الیکشن کمشنر کو چوز کرتے ہیں. جیسا کہ اشفاق احمد قاضی صاحب اور افتخار احمد ضرور دو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ تھے الیکشن کمشنر پوسٹ بھاپار منڈل بارہمولہ کے لیے، تو اس میں سے اشفاق احمد قاضی صاحب بھاری اکثریت سے جیت کر الیکشن کمشنر مقرر ہوئے. انہی ایگزیکٹو ممبرس نے اس کو بائی بیلٹ ووٹ ڈال کر الیکٹ کیا 2022 الیکشن کے لیے، جن میں کچھ سرکردہ بھائیوں کے نام لینا چاہوں گا، جیسے امتیاز احمد شیخ صاحب جو RNB روڈ سے ہمارے ایگزیکٹو ممبر تھے، انہوں نے بھی اشفاق احمد قاضی کو ووٹ ڈالا. جیسے کہ ہمارے فجباغ سے بشارت احمد ملک صاحب، انہوں نے بھی اس کو ووٹ ڈالا. جیسے کہ اوقاف مارکیٹ سے اقبال احمد چاوک، انہوں نے بھی ووٹ ڈالا. جیسے کہ نیشنل ہائی وے سے قمر اقبال زرگر صاحب، انہوں نے بھی اس کو ووٹ ڈالا. تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے کل اسی بھاپار منڈل کے خلاف، الیکشن بورڈ کے خلاف سڑکوں پر آ کر نعرے بازی کی، جو بھاپار منڈل بارہمولہ کے شان نشان نہیں ہے. پہلے تو اس چیز کو میں کنڈم کرتا ہوں، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے بائی بیلٹ بائی ووٹ اشفاق احمد قاضی کو کمشنر الیکشن بورڈ مقرر کیا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو کیاس اور کنفیوژن ہے، یہ کوئی کیاس اور کنفیوژن نہیں ہے، یہ سیدھی اور سادی بات ہے. کیونکہ 22 اگست 2022 کو الیکشن بورڈ نے فارم اجرا کرنے کا ڈیٹ مقرر کیا تھا، تو سب حضرات نے اپنے فارم واپس لیے، اپنے فارم حاصل کیے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اور جنرل سیکرٹری کینڈیڈیٹ کے. تو ہم نے بھی اپنے فارم ویسے ہی حاصل کیے جیسے اوروں نے کیے. تو اس کے بعد 2 دن کا وقفہ تھا اس میں، اور 24 تاریخ کو ہمیں واپس فارم سبمٹ کرنے تھے. سب نے اپنے اپنے فارم سبمٹ کیے. تو اس ضمن میں ایک ہماری پارٹی جو ہے ان کے فارم ریجیکٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا جو فارم ہے اس کے لیے الگ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اور جنرل سیکرٹری کے لیے الگ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے جنرل سیکرٹری کا فارم پریزیڈنشل کے لیے بھرا اور پریزیڈنشل کا جنرل سیکرٹری کے لیے. تو یہ الیکشن بورڈ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، انہوں نے کیا کیا کیوں نہیں کیا. لیکن ایز آئی ایم دا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ایز پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اینڈ مائی فرینڈ فاروق احمد قمرو جنرل سیکرٹری. تو جب ہماری نوٹس میں یہ آیا کہ الیکشن بورڈ نے 2 نئے فارم اجرا کیے ہیں، تو وی وینٹ ٹو میٹ آور لیگل ایڈوائزر، ہم نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھیجی. ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ نئے فارم اجرا نہیں کر سکتے. کیوں؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے تو ان لوگوں کو بھاپار منڈل کی افادیت اور بھاپار منڈل کا ویلیو پتہ نہیں ہے. بھاپار منڈل بارہمولہ وہ واحد ادارہ ہے جو انڈسٹری اینڈ کامرس کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے بڑی انتھک محنت کے بعد رجسٹرڈ کرایا ہے. اور پھر ہم نے اس میں کے ساتھ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کے ریپرزنٹیٹیوز بھی اس میں جاتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور سینٹرل گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کن بنیادوں پر آپ
साल का बजट बनाएंगे, मुल्क का बजट बनाएंगे, स्टेट का बजट बनाएंगे, तो मेरे ताजुब भाइयों को समझना चाहिए कि हम किस रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, हम किसके हक में वोट डालें। जिन भाइयों को अपना फॉर्म फिलअप करना नहीं आया, तो हाउ कम दे कैन रिप्रेजेंट द ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑफ बारामूला, हाउ कम they will represent traders community of Baramulla in front of finance minister, in front of LG government, in front of any other option। तो ये खाली तस्बिया के लिए बारामूला नहीं है, इसका एक रोल है। ये टैक्स पेयरों की एक जमात है जो 17,000 करोड़ का टैक्स देते हैं जी। तो बड़े अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है, नहीं वो कोर्ट में चले गए, दैट वाज देयर डेमोक्रेटिक राइट कि वो कोर्ट से अपने लिए इंसाफ मांगते या क्या उनका था, लेकिन जो गलती उन्होंने की वो रोडों पर आए और उन्होंने बारामूला के खिलाफ नारेबाजी की और इसके तकद्दुस को पामाल किया। मैं उनको कंडेम करता हूं आपकी चैनल की वसादत से। दिस वाज द हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। हाउ कम ही कैन अकोमोडेट देयर फार्मर्स। हाँ, उसको लीगल नोटिस सर तारिक साहब यहाँ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आप अभी भी वर्किंग इसमें है। बिल्कुल, आप इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी है, आप इस वक्त भी है। इस हवाले से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कई लोग इस वक्त कहते हैं कि जो 4 साल गुजरे हैं व्यापार मंडल के, तो उसमें कोई ऐसे काम नहीं हुए, तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया इन 4 साल? देखिए इंदिरा साहब, मैं आपकी चैनल की वसादत से फिर एक बार ये बात दोहराऊंगा कि हमने क्या काम किए। मैंने जो पहली मीटिंग अपने इलेक्शन की गैदर की थी, इनवाइट की थी, उसमें मैंने सारी डिटेल दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा। देखिए 2017 दिसंबर में हमारे इलेक्शंस हुए जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अशरफ गनाई साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो 2018 में हमने बारामूला में एक हिस्टोरिकल चीज़ लाई ट्रेडर्स के लिए, वो है पासपोर्ट ऑफिस नॉर्थ कश्मीर, जिसके लिए हमने अनथकन कोशिश की, क्योंकि बारामूला जम्मू कश्मीर का टेल एंड का डिस्ट्रिक्ट है, टेल एंड का टाउन है। तो हमने वो किया और उसके साथ साथ हमने जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन को यहाँ हुकाम से मिलकर हुकाम को मदऊ करके हमने उनको उसकी तैनाती यहाँ कराई। क्यों कराई? क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के टीचर हजरात यहाँ आकर अपने काम के साथ साथ हमारी तिजारत का भी बढ़ावा करें और पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिहाज से अगर नॉर्थ कश्मीर के पूरे लोग यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए आते, वो अपॉइंटमेंट के साथ साथ बारामूला की तिजारत में नया फुकदान डालने के लिए हमने ये काम किया। उसके साथ साथ यहाँ दफा 370 इमिग्रेट हुआ, कोविड की 2 साल लहर चली, तो हमें काम करने का खाली 8 महीना मिला, लेकिन जो कोविड के दौरान बारामूला ने काम किया, मैं उन ताजुओं को, उस अपनी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं जो रात दिन उन पसमानदा ताजुल पेशों के पास पहुंचे जिनको उस वक्त हमारी जरूरत थी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जिन्स था या माल था। हमने अपने आप को पेश रखा, या उन बीमारों तक जो हमारे ताजुल हजरात कोविड के शिकार हुए थे, उन तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या उन तक दवाई या उनको हॉस्पिटलाइज कराना या उनको वेंटिलेटर मैसर करना, उस वक्त नीड ऑफ द ओवर वही थी। तो हमने अपना रोल किया और हमने 765 तस्वीर किए हैं इस दौरान। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा, यहाँ पर एक हमारा भाई ताजिर भाई जिसके पास सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन थी नॉर्थ कश्मीर के लिए, तो कंपनी ने, सैमसंग कंपनी ने उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप छीनी और दूसरे आदमी को दी, लेकिन ये बारामूला ही था। मेरी क़यादत में मेरी टीम ने सैमसंग इंडिया लिमिटेड को तब तक यहां पर अपना ऑपरेशन नहीं करने दिया जब तक उसकी एनओसी हासिल थी। उसका मार्केट में 90 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग थी, उसका स्टॉक 1 करोड़ रुपए का था। जब तक हमने कंपनी से वो वसूल किया तब तक हमने उनको ऑपरेशन यहां शुरू करने नहीं दिया। दिस वाज द वर्क ऑफ ट्रेडर्स फैक्ट्री, यही मेरा काम था। और उसके साथ साथ ओप्पो की एक के पास, मेरे भाई के पास डिस्ट्रीब्यूशन थी जो श्रीनगर के डिस्ट्रीब्यूटर ने उससे छीनी। तो हम उस वक्त ट्रेडर्स फेडरेशन ने ओप्पो का ऑपरेशन नॉर्थ कश्मीर में रोका जब तक जो उसके 73 लाख जो आउटस्टैंडिंग थी और उसकी क्लेम्स थी और उसका स्टॉक था, जब तक कंपनी के साथ वो सेटल डाउन कराया हमने, तब तक हमने उसको
दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ काम करने नहीं दिया। तो तारिक साहब एक और बात है आपसे, इस वक्त ताजिर बरादरी है बहुत ही परेशान है कि सभी लोग सच जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये कुछ दिनों से यहाँ चल रहा है ये क्या चल रहा है। देखिए, क्योंकि हर कोई इंसान, मैं आपको ये बता दूं, हर कोई इंसान सोशल मीडिया नहीं देखता, ऐसे न्यूज़ वगैरह नहीं देखता, तो वो एक दूसरे की बातें सुनकर ही ये फैसला फिर कर सकते हैं तारिक साहब गलत है, फलानी गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वसाजत से आप बोलिए, लोगों में जो ये कन्फ्यूजन ये दूर हो जाए। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ना तो इसमें कोई गलत हुआ है। इलेक्ट्रिक फोरम है, तीन लोगों के लिए बाबा मंडल बारामूला में इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए। दे आर द इलेक्टेड पीपल जी। उन्होंने एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा मंडल बारामूला फॉर्म रिजेक्ट किए। मैंने पहले ही आपसे कहा, जो आदमी अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, हाउ कम ही कैन रिप्रेजेंट बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, हमें प्री बजट मीटिंग में बुलाया जाता है। ये बाबा मंडल बारामूला खाली तस्बिया के लिए नहीं है, ना रोडों और नालियों के लिए, ना स्ट्रीट लाइटों के लिए है। यहाँ पर एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर तजुर्बेकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर द पीपल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो मुल्क को टैक्स देते हैं, रिन्यू देते हैं, तब जाके मुल्क चलता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, कनेक्टिविटी बनती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। व्हेन वी वर्क 18 आवर्स। तो इसके लिए बाबा मंडल बारामूला का रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड होना, एक्सपीरियंस्ड होना, स्मार्ट होना लॉज में मलजूम है। वही तो सजेशन दे सकता है जिसको अपना फॉर्म भरना आए, या जिसको फॉर्म भरना नहीं आएगा, हाउ कम ही विल रिप्रेजेंट। तो इस हवाले से आप अपनी ताजिर बरादरी और अवाम को, खासकर बारामूला की अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे एक ही आपकी चैनल की वसादत से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप 2-3 दिन वेट कीजिए, क्योंकि हमारे भाई इलेक्शन बोर्ड और दूसरी भाई वो चले गए हैं कोर्ट में। कोर्ट का डिसीजन कल या परसों आएगा, क्योंकि जो हमारा बाबा मंडल है ये रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑफ द इंडिया। इसको सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लॉजिक पर मबनी है। यही मैसेज हम उनको देना चाहेंगे। आप कोई कियास नहीं, कोई कंफ्यूजन खत्म कीजिए, 2 या 3 दिन में आपको सच सामने आ जाएगा, और उसी के साथ आपको हमें फिर इलेक्टेड करना है ताकि हम आपकी रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब।